So good evening and welcome. Welcome to Divine Healing Valley Spirituality and Healing Meet. I'm Shashidhar, your host, and I welcome all the guests here today and all our regular participants here today to join our regular weekly Wednesday meet. And this meeting is free for all. It's for the guests and all the family members who would like to come here and gain some spiritual insights. So this is something that we have planned for the last 5 years now. So we have been doing these programs regularly every Wednesday. And this is just to spread the light of divine wisdom to the people who are seekers and who can focus on your spiritual journey and get a booster dose. That's what I say. You get a booster dose on your spiritual journey. So that's what this is all about. We have done many sessions on a particular theme. So we have completed the theme on the healing of the 7 major chakras. And now we are moving on to the spiritual laws. And in the spiritual laws series, we have already covered the first spiritual law, which means we are following the 7 spiritual laws written by Deepak Chopra. So that is the book we are referring to. So the first law that we did was law of pure potentiality, which is also called the law of being. So we did that. The second law we focused on was law of giving and receiving rather. Yes, so we saw that also. And now in the last session, we had seen the law of karma. Yes, and since it is a topic which is related to our day-to-day life, so I thought we will continue the discussion in today's session and also do a quick recap of what we did in the last session, plus learn some actual experiential value from our sharing so that we can make some impact in our life and in the lives of all the people who are here. Yes, so that is the agenda for today. So we will continue our discussions on law of karma. Now, before we start, I think there are many new people here who have not attended the last session. So let's have a quick recap. So what all did we do in the last session of law of karma? So I will start by letting all of you suggest or share your understanding of what is law of karma. Law of karma हम सबने सुना हुआ है, हाँ, भगवत गीता में भी पढ़ा हुआ है. तो बहुत कुछ हमने सुना है, बहुत कुछ हमने सीखा है, लेकिन हमारे लाइफ में क्या हो रहा है उससे हम कनेक्ट करके आज देखेंगे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है. तो व्हाट इज कर्मा, एंड देन वी कम टू व्हाट इज लॉ ऑफ कर्मा. तो व्हाट इज कर्मा एज पर योर अंडरस्टैंडिंग? कौन बोलना चाहेंगे? एनीबडी कैन शेयर. What is The karma? actions and thoughts. Actions and thoughts. Okay. So you can say the actions and the intention behind that action, which comes as thoughts, words, and deeds. So karma means not only the deeds, it means the thoughts, it means the words that you speak and your deeds. So मन से, वचन से और कर्म से बोलते हैं ना, तो ये तीनों ही कर्म में आएगा. So that is the right definition of karma. Karma is thought, words, and deeds. Yes. Now, the karma that we are doing now is the present karma, and the karma that we have done in the past. Now, in the past could be in the morning. It could be when you were 5 years old. It could also be maybe 5 lifetimes before what you did. So we all believe in the theory of rebirth. Yes. So एक आत्मा है जो एक लंबी यात्रा पे है, कई जन्मों के सफर कर रही है. हिंदी वाला सफर, हाँ. तो कई जन्मों से सफर करते हुए अलग अलग जन्म लेते हुए अपने कर्मों को शुद्ध करते हुए आगे बढ़ रहे हैं. इट्स ऑल अ प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन दैट वी आर ऑन टू. यस. एंड जो भी कर्म आपने पहले किए हैं, ऑल दैट विल बी पास्ट कर्म. So there is a set of past karmas, there is a set of present karma in this lifetime, and there is also a genetic karma that we get from our ancestors, our parents. Hereditary जो आ रहा है, तो family tree से जो आ रहा है. So these are the 3 sets of karmas which are very, very predominant in the whole set of karma that dominate us. Yes, so we saw this in the last session, and we also saw the different qualities of karma. We saw that. So different qualities of karma would be, your karma could be of tamasic nature, of rajasic nature, or sattvic nature. So this is also we saw in the last session. तीनों की कैटेगरी हमने डिस्टिंग्विश करी थी कि कौन से कर्म हमारे तामसिक होते हैं, राजसिक होते हैं और सात्विक होते हैं.
Yes. And we also saw another category of karmas, which was, this is as per the quality and that is as per the type of karma. तो type of karma में हम बोलते हैं संचित कर्म है, प्रारब्ध कर्म है and क्रियामान कर्म है. Correct? So sanchit karma is the set of all the past karmas, a subset of that which runs our life situations in the present life, that is the prarabdha karma. And उस प्रारब्ध के सामने या उसके स्थिति के अनुसार जो हम पुरुषार्थ करते हैं, that is the क्रियामान कर्म. So this is how we can distinguish the karma, right? तो कौन से कर्म हमारे कंट्रोल में है? संचित कर्म हमारे कंट्रोल में है क्या अभी? नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी हम कर्म कर चुके हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं. कर्म कर दिया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आने ही हैं. Yes. Now the life situation has come in that, in the light of the life situations that are coming to us, how are we reacting? अभी हमारे क्रियामान कर्म क्या है, हमारा पुरुषार्थ क्या है? That will actually give us the experience of life right now. Yes, everybody okay with that? तो अगर आपका, जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लें, कोई इंसान जा रहा है और उसका एक्सीडेंट हो गया, या कोई बीमारी आ गई, या कोई रिलेशनशिप में ब्रेकडाउन हो गया, पड़ोसियों से झगड़ा हो गया, जॉब चली गई, तो these are the situations that can happen. So all this is happening because of the prarabdha karma which has descended into your life as a life situation. हमें जी मेरा इंटरनेट थोड़ा अनस्टेबल दिखा रहा है. I hope I am audible. Okay, good. So these life situations are coming as a It was prarabdha. breaking in between, but largely it is okay. Okay. So for those who are not able to follow it properly, you will get the recording. So you can watch it again. That's all I can say right now because network थोड़ा सा unstable दिखा रहा है. Yes. So we talked of प्रारब्ध कर्म. तो लाइफ सिचुएशंस जो आती हैं वो प्रारब्ध कर्म से आती हैं और उसके इन फेस ऑफ दी सिचुएशंस हाउ एम आई रिस्पॉन्डिंग, दैट इज माई पुरुषार्थ. तो एक्सीडेंट हो गया, बीमारी आ गई, अगर मैं क्रिप कर रहा हूँ, रो रहा हूँ, दुनिया भर को ब्लेम कर रहा हूँ, भगवान को भी ब्लेम कर रहा हूँ, तो मेरे कर्म थोड़े तामसिक नेचर के हो गए, राइट? एंड इन दैट केस that will set up a consequences which are going to come to me later. तो नेगेटिव अगर मैं हो गया तो रिजल्ट्स भी उसके नेगेटिव आएंगे आगे चल के. माइंडसेट नेगेटिव है, एटीट्यूड नेगेटिव है, एक्शंस नेगेटिव है, कर्म नेगेटिव है, तो कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे कैसे होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस पॉजिटिव कैसे आएंगे? सो आई विल नॉट बी एबल टू क्रिएट एनी वंडरफुल रिजल्ट्स इन माय लाइफ. आई विल आइदर बी क्रिएटिंग वेरी ऑर्डिनरी रिजल्ट्स और वेरी ट्रैजिक काइंड ऑफ रिजल्ट्स. सफरिंग एंड मिजरी में जीऊंगा. यस. But even if I have an accident or even if I suffer a disease, I am grateful to the divine. I'm grateful to the divine कि I don't know why this has happened, but I trust the divine कि जो कुछ हुआ अच्छा हुआ. इसका एक फॉर्मूला है WHHFG जो अमित जी अक्सर बोलते रहते हैं, whatever happens happens for good. तो जो कुछ हुआ अच्छा हुआ. अच्छा हुआ मतलब ठीक हुआ. अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये मेरा फायदा कैसे होगा, लेकिन आगे चल के मेरे को समझ में आ जाएगा क्योंकि ये डिवाइन का खेल है. Yes. So you are surrendering to the divine, accepting the life situations as it is, and being grateful to the divine for whatever is happening in your life. Then what happens? When you are grateful, you will be happy. Can you ever be grateful and be angry? Not possible. If you are grateful to the divine, you will be happy. And if you are happy, you will be grateful. Yes. So that is present moment के लिए बहुत बढ़िया एक मंत्र है, feeling happy, giving thanks. I am happy, I am grateful. अगर इन दोनों को आप पकड़ लोगे, आपके प्रेजेंट कर्मा में नेगेटिविटी आने के चांस ना के बराबर है. कुछ भी हो जाए, एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गई, फ्रैक्चर हो गया, चोरी हो गई, नौकरी चली गई, दोस्त से झगड़ा हो गया, पड़ोसियों से झगड़ा हो गया, कुछ भी हो रहा हो, व्हाटएवर इज हैपनिंग फॉर ए गुड. अभी मेरे को नजर नहीं आ रहा, बट देयर इज समथिंग गुड व्हिच इज गोइंग टू कम लेटर ऑन. इफ यू हैव दैट बिलीफ एंड इफ यू सरेंडर टू द डिवाइन, you will be happy, you will be grateful. How many of you can connect with this? और अक्सर क्या होता है, हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, एक चीज गड़बड़ हो जाती है एंड वी स्टार्ट क्रिबिंग एंड क्राइम.
सारे रिश्ते अच्छे चल रहे हैं, एक इंसान ने हमको कुछ बोल दिया और हम सर पकड़ के बैठ गए, उसने ऐसा क्यों बोला, हे भगवान मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरा दिन खराब हो गया, उसने झूठ का इल्जाम लगा दिया मेरे ऊपर. यस, योर 99 relationships are going good, one relationship is slightly off and you get upset, and with that upset you spoil the other 99 relationships also which are going fine. Get my point? So your present karma is very, very important. Clear? So we should always focus on the kriyaman karma or the purusha because that is what is in my control. मेरे कंट्रोल में सिर्फ वही है. एंड व्हेन आई एम सेइंग मेरे कंट्रोल में, तो आपको भी अपनी लाइफ में देख के बोलना, हाँ मेरे कंट्रोल में सिर्फ क्रियामान कर्मा है. सो इट इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ अस, हाउ वी आर लिविंग अवर लाइफ. So how many of us are grateful to God whenever whatever is happening to us? How many of us has that mentality? Good. So you will always be having a happy disposition, you will always be grateful and you will always be happy. Correct? Momentarily हो सकता है, अब बेटे का रिजल्ट आया और वो फेल हो गया, बेटा चोट खा के आ गया, चोट लग गई है, यू विल स्लाइटली गेट अपसेट, थोड़े से इमोशनल भी हो जाओगे, दैट्स फाइन. You handle the situation and quickly come back to normal. Yes, that's what we do. लेकिन अगर हम उसमें बह गए, इमोशंस में बह गए और फिर नेगेटिव होना शुरू कर दिया, तो थॉट्स नेगेटिव, इमोशंस नेगेटिव, वर्ड्स नेगेटिव, एक्शंस नेगेटिव एंड यू आर एक्यूमुलेटिंग नेगेटिव कर्मा. इट विल गो इनटू ए लूप. उस लूप को तोड़ना जरूरी है. तो सबसे पहले हमको अपने क्वालिटी ऑफ कर्मा पे ध्यान देना है. दिस इज व्हाट वी picked up in the last session. Everybody align with me? Everybody okay? Yes. So let's have some people share what is opening up, and then we move on. जो भी आपके एक्सपीरियंस में आ रहा है, अपने कर्मा की क्वालिटी को देखना है. हम सबको अपने अपने कर्मा की क्वालिटी को देखना है. एंड लास्ट सेशन में हमने ये भी देखा था कि अगर आपके सारे थॉट्स टेलीकास्ट होने लग जाएं, मान लीजिए आपके सिर के ऊपर एक एलसीडी टीवी लगा हुआ है और आपके सारे थॉट्स टेलीकास्ट होने लग गए हैं, मतलब आप जो कुछ भी सोच रहे हैं किसी के बारे में वो टेलीकास्ट होकर उसको दिख जाए, हाउ वुड योर लाइफ बी? आपके कितने रिश्ते हैं जो टिकेंगे? पड़ोसियों के साथ, Disaster. दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, बॉसेस के साथ, जूनियर्स के साथ. सोच के देखिए, आप जिसके बारे में जो भी सोचते हैं वो सब टेलीकास्ट हो रहा है, उनको दिख रहा है और आपको भी दिख रहा है वो क्या सोच रहे हैं, सपोज. राइट? तो अगर मैं और अमित जी अभी बैठे हैं तो मेरे सारे थॉट्स अमित जी को टेलीकास्ट हो रहे हैं, अमित जी के सारे थॉट्स मुझे टेलीकास्ट हो रहे हैं. अगर ऐसे रिलेशनशिप हो जाए तो हमारे कितने रिश्ते चलेंगे और कितने दिन तक चलेंगे, कितने सेकेंड्स तक चलेंगे? दैट शोज अवर क्वालिटी ऑफ कर्मा. तो कर्मा इज नॉट अबाउट डीड्स, इट इज अबाउट अवर थॉट्स, अवर इमोशंस, अवर वर्ड्स एंड ऑफ कोर्स अवर डीड्स. तो अक्सर हम बोलते हैं ना, मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ बुरा क्यों हो गया? आपने सोच सोच में कितने लोगों को मारा है, कितने लोगों की टांग तोड़ी है, कितने लोगों को थप्पड़ मारा है, कितने लोगों को गालियां दी हैं. तो ये सब टेलीकास्ट नहीं होता लेकिन टेलीपैथी से वहां तक पहुंच जाता है. आप किसी के बारे में दिन रात बुरा सोचते रहें तो क्या वो एनर्जी वहां तक नहीं पहुंचेगी? कोसते रहे किसी को तो वो एनर्जी वहां तक नहीं पहुंचेगी. और जब वो आपके सामने आएंगे, आप कहेंगे उसने मेरे से बात ही नहीं करी. आप जो इतने लंबे चौड़े पैराग्राफ्स लिख के भेज रहे थे, किताबें लिख के भेज रहे थे उनको थॉट्स के माध्यम से, वो उन्होंने पढ़ लिया है, उनको अच्छा नहीं लग रहा आपसे बात करना, वो मुंह मोड़ के चले गए, आप कहते हैं इग्नोर कर दिया मुझे, उसकी ऐसी हिम्मत, और फिर आप और कुड़ने लग गए. होता है ये. You should check the quality of thoughts if you want to check the quality of karma. That is the first step. Okay. So now before I get into further depth of the discussion, let's have some people share.
कौन शेयर करना चाहेंगे? व्हाट इज ओपनिंग अप? हाँ जी, आप रियल मी कौन है? आप जरा अपना नाम बताइए पहले तो, so that I can connect with you. RMX 5003. ओके, चलिए कोई बात नहीं, जब भी आप कंफर्टेबल होंगे यू कैन शेयर। शालू जी कुछ शेयर करना चाहेंगे? क्या इंसाइट्स मिल रही हैं? सर मतलब बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आपने जो बोला है सही बोला है। कई बार हम मुंह से नहीं बोलते पर दिमाग में चलता रहता है नेगेटिव जो चीज है, और वो पहुंच ही जाती है किसी ना किसी तरीके से, चाहे हम बोले ना बोले। और पता चल जाता है कि हाँ, वो उसको हम बोलते हैं वाइब, बोलते हैं कि नेगेटिव वाइब आ यस, रही है, यस, पॉजिटिव वाइब आ रही है। एब्सोल्युटली, क्योंकि आपके ऑरा में आपका एनर्जी फील्ड है, उनका भी एनर्जी फील्ड है, और टेलीपैथी से आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। अब किसी को अगर दिन रात पूछते रहेंगे तो कुछ ना कुछ उनको ये नहीं पता लगेगा एग्जैक्टली आप कौन सी गालियां दे रहे हैं, राइट, लेकिन उनको ये पता लग जाएगा कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है इससे। होता है ना, किसी से मिलते ही हमको लगता है नहीं ये मजा नहीं आ रहा है, इससे बात नहीं करनी। तो वो एनर्जी है, पहले से ही कुछ होता है। जान पहचान के लोगों का या अनजान लोगों के साथ भी होता है, एनर्जी आपको बिल्कुल ठीक नहीं लगती उनकी। आप पार्टी में किसी से मिल रहे हैं या किसी से मिल रहे हैं, आप एकदम चुप हो जाते हो, अलग हो जाते हो, कोई हैंडशेक भी नहीं, कोई नमस्ते भी नहीं, आप सिर्फ मुंह मोड़ के चले जाते हो। होता है ये, दैट इज बिकॉज द एनर्जी लेवल इज नॉट मैचिंग। yes, so it is okay, it does happen, so we have to be very very careful about our कर्म। उनके कर्मा को तो हम नहीं ठीक कर सकते, अपने कर्म हम सुधार सकते हैं। तो अपने थॉट्स, अपने वर्ड्स, अपने डीड्स फोकस करना, क्योंकि यही बताएंगे कि हम तामसिक हैं या राजसिक हैं या सात्विक हैं। ये क्वालिटीज है, ये क्वालिटी ऑफ कर्मा, करेक्ट। तो वी हैव सीन द क्वालिटी ऑफ कर्मा, वी हैव सीन द टाइप्स ऑफ कर्मा, एंड नाउ वी कम टू द एक्चुअल कर्मा जो हम करते हैं। उसके भी कुछ कैटेगरीज हैं। एक और कैटेगरी है अलग तरीके से समझने का, जिसको हम बोलते हैं निषिद्ध कर्म, सकाम कर्म, और तीसरा कौन सा है? एनीबॉडी? निष्काम। यस, परफेक्ट। निषिद्ध कर्म इज द प्रोहिबिटेड, sakam karm is with desires, and nishkam karm is absolutely free from all the desires. So these are another three qualities of karma which we can understand. So let us look into this. ये हमने पिछली बार डिस्कस नहीं किया था, तो ये हम अभी डिस्कस करेंगे। यस, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं निषिद्ध कर्म। निषिद्ध कर्म कौन से हैं? प्रोहिबिटेड एक्ट्स। आपने अपनी लाइफ में कुछ रूल्स बनाए हुए हैं, ये कर्म मैं नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, ये निषिद्ध कर्म है आपके लिए। तो ऐसे रेस्पेक्टफुल रेस्पेक्टेड सिटीजन ऑफ द कंट्री वी नो वी हैव टू ओबे द लॉस। तो कुछ भी इलीगल या अनलॉफुल अगर होगा तो उसको हम निषिद्ध कर्म में बोलेंगे, हम ये नहीं करेंगे। तो स्टीलिंग, रॉबरी, किडनैपिंग, मर्डर, वायलेंस, तो कुछ कुछ चीज़ों में हमने बड़ी क्लियरली बोला हुआ है नहीं, ये हमको नहीं करना। यस, कोई कितना भी उसमें हमको लालच दे, हम कहेंगे नहीं, मेरे को ब्राइब नहीं करना है, मुझे किडनैप नहीं करना है, मुझे रैंसम नहीं मांगना है, ये सब निषिद्ध कर्म नहीं करूंगा। स्मगलिंग, ड्रग्स, व्हाटएवर, करेक्ट, ये निषिद्ध कर्म है। क्लियर है ये? आपने अपने रूल्स बनाए हुए हैं, अब हर एक के अपने अपने होंगे। अब कोई ये भी बोल सकता है कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा, तो उनके लिए सर झूठ बोलना निषिद्ध कर्म हो गया। और कुछ लोगों के लिए है जो सेल्स में है, वो कहेंगे नहीं, झूठ बोलना जरूरी है, करेक्ट। तो वो ऐसा कोई, तो उनके लिए वो ओके है। कॉन्सिक्वेंसेस उसके होंगे अलग, किसी भी कर्म के कॉन्सिक्वेंसेस तो आएंगे ही आएंगे, पर उनके लिए वो प्रोहिबिटेड नहीं है। यस, तो हर एक को अपनी अपनी लाइफ में देखना है, आपने अपनी लाइफ में किन चीज़ों को प्रोहिबिटेड माना हुआ है, वो आपके लिए निषिद्ध है, और उससे आप औरों को जज नहीं करेंगे। ये आपका रूल है, किसी और के कोई और रूल हो सकते हैं। आप अहिंसा में बिलीव करते होंगे, कोई और अहिंसा में बिलीव नहीं करता हो,
आप सत्य की बातें करते होंगे, कोई बोलता है झूठ बोलना ओके है, करेक्ट। अब कोई सन्यासी है, वो कहेगा गृहस्थ जीवन नहीं चाहिए। अब जो गृहस्थ है वो कहेगा गृहस्थ जीवन में रहना है। तो हर एक के लिए अपनी अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, विच विल टेल यू व्हाट इज प्रोहिबिटेड, व्हाट इज ओके। तो जो प्रोहिबिटेड है उसको निषिद्ध कर्म बोलेंगे। क्लियर है ये सबको? एवरीबडी क्लियर? इसमें आपका रूल चलेगा। सोसाइटी के रूल से आप गाइड हो सकते हो, लेकिन उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना जरूरी नहीं है। आपके अपने वैल्यूज हैं, आपकी अपनी लाइफ है, आप डिसाइड करेंगे आपके लिए क्या प्रोहिबिटेड है, डिपेंडिंग ऑन योर वैल्यूज, फैमिली वैल्यूज, पर्सनल वैल्यूज, जो भी आपने सीखा है, लाइक दैट। सेकेंड इज, और इसको हम तामसिक भी बोलते हैं, तो ये नॉर्मली तामसिक नेचर का होता है, विच इज ऑफ द एब्सोल्युटली लोवेस्ट लेवल ऑफ कर्म। यस। देन वी कम टू सकाम कर्म। सकाम कर्म का मतलब है इसमें आपकी कुछ सेल्फिश डिजायर्स हैं। कर्म अच्छा या बुरा दोनों हो सकता है, लेकिन आपकी सेल्फिश डिजायर हैं। कैसे? मान लीजिए मैं दान करता हूँ, मैंने 50,000 रुपीज, 1 लाख रुपीज का डोनेशन दिया, और मैं बड़ी बड़ी फोटो छपवाता हूँ उसकी, और अपने सब सब फैमिली फ्रेंड सबको बताता हूँ कि मैंने 50,000 रुपये डोनेट किए हैं। ना क्यों? क्योंकि मेरे को अपनी ईगो प्यारी है, मेरे को अपना प्रेस्टीज, मेरे को अपना नाम चाहिए, रेपुटेशन चाहिए, वाहवाही चाहिए लोगों की, इसलिए मैंने डोनेट किया। तो लोग करते हैं, डोनेट करते हैं, फोटो खींचते हैं साथ में चेक के, बड़ा सा चेक दिखाएंगे, फोटो खींचेंगे और फिर आगे देंगे। यस। तो ये सकाम है। देयर इज ए हिडन एजेंडा कि मेरे को नाम चाहिए, मुझे फेम चाहिए, मुझे वाहवाही चाहिए। काम अच्छा है वैसे, डोनेट किया है, करेक्ट। सो कुछ सेल्फिश डिजायर हैं। अब कभी भी आपको कुछ भी रिटर्न में मिल रहा हो तो वो आपके लिए सकाम कर्म हो। इन कॉन्ट्रास्ट विद निष्काम कर्म क्या है, उसमें मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं, मैं कुछ भी नहीं लूंगा उसके बदले, फ्री में। अब डोनेशन दिया, गुप्त दान, मैं किसी को बताया ही नहीं कि मैंने डोनेट किया, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। तो ये गुप्त दान जो होगा वो निष्काम कर्म में आएगा। अगर मैं ढिंडोरा पीट रहा हूँ उसके लिए, तो वो सकाम कर्म में आएगा। कर्म दोनों अच्छे हैं, पर एक में थोड़ी सी सेल्फिशनेस है, अपना एजेंडा है, अपनी कोई एक डिजायर है। अब इसमें बिल्कुल भी गलत नहीं है, किसी को हर्ट नहीं कर रहा हूँ, किसी को चीट नहीं कर रहा हूँ, पर मेरी एक सेल्फिश डिजायर है। क्लियर? वेन एवर यू वॉन्ट समथिंग इन रिटर्न, इट विल बी ए सकाम कर्म। क्लियर है? इसी में आएंगे हमारे जितने नोबल प्रोफेशन हैं। टीचिंग, टीचिंग इज ए नोबल प्रोफेशन। सम पीपल डू इट फ्री एंड सम पीपल गेट पेड। मोस्ट ऑफ द टीचर्स विल गेट पेड, करेक्ट। और कुछ लोग हैं जो फ्री में भी सिखाते हैं। तो फ्री में सिखा रहे हो तो निष्काम है। अगर आपको उसकी फीस मिल रही है, ट्यूशन ले रहे हो, सैलरी मिल रही है स्कूल से, कॉलेज से, या प्रोफेसर हैं या साइंटिस्ट हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो लेकिन उसके लिए फीस मिल रही है, इनकम मिल रही है आपको, तो सकाम है। तो जितने लोग जॉब कर रहे हैं, सैलरी मिलती है, तो सकाम कर्म है। तो बुरा नहीं है, बिल्कुल सही है। आपको अपनी जीविका चलानी है तो सकाम कर्म ही करना होगा। इंटरेक्टिव वर्ल्ड है, व्यवहारिक जिंदगी में आपको सकाम कर्म करना ही होगा, वरना आपकी जिंदगी चलेगी नहीं। यस। बट उस क्वालिटी को अगर बढ़ाना है तो निष्काम कर्म में आना है। निष्काम कर्म सात्विक है, सकाम कर्म राजसिक है। ये डिस्टिंक्शन है। एक में सेल्फिश डिजायर है और एक में प्योर अनसेल्फिश एक्ट है। यस। रुकैया जोशी जी, आपने हैंड रेज किया है, आप शेयर करना चाह रहे हैं कुछ, बताइए। मैं शायद क्लैरिटी चाह रही हूँ। हम्म। अम, मैंने ऐसा हो सकता है क्या कि निषेध कर्म सबके लिए कॉमन है? किसी हो को सकता है। किसी को हर्ट करना, हम्म। किसी की निंदा करना, कि कोई भी जो नेगेटिव, जो खुद को नहीं अच्छा लगता है वो दूसरों के लिए करना, हम्म। तो वो कर्म
सबके लिए एक ही तरीके होंगे निश्चित, यानी जो उसमें कुछ मैं कैटेगरी हो सकती है, जैसे कि जो अनलॉफुल है या इलीगल है वो सबके लिए निषिद्ध होगा। अब जैसे ये मर्डर है, अब हाँ जैसे मर्डर है, हाँ आप ये आर्म मैं फोर्सेस को छोड़ दीजिए, आर्म फोर्सेस हाँ को छोड़ दीजिए और सोल्जर्स को हाँ छोड़ दीजिए। हाँ नेचुरली जो हम नॉर्मल सिटीजन्स हैं, अगर वो किसी का मर्डर करते हैं तो वो निषिद्ध कर्म है, हाँ, पुलिस तो केस होगा, सजा मिलेगी। ऑफ यस, नेचर। हाँ, और ये सबके लिए एक्सेप्ट फॉर एग्जाम्पल जो आपने दिया कि सन्यासी है तो उसके लिए एक थोड़ा सा और जुड़ जाता है जो फैमिली पर्सन के लिए नहीं होता, पर बाकी ये सबके लिए कॉमन होता है। और होता है नहीं बोलूंगा, हो सकता है बोलूंगा मैं। अच्छा, हो सकता है ना? अब ओके जरूरी नहीं है हर एक के लिए हो। ओके। करेक्ट। और दूसरी बात के जो काम निष्काम की बात कर रहे हैं, तो भगवत गीता में जो बताया है, उसका जो मेरी समझ है कि आपको वो काम के लिए पेमेंट मिलती है या नहीं मिलती है, वो आपको उसको सकाम नहीं करता है, पर आप उसके फ्रूट से, उसकी आउटकम से कितना अटैचमेंट है आपका, आप उससे कैसे अटैच। आई वॉन्ट टू डू, आई वॉन्ट टू विन, क्रिकेट खेल रहा हूँ तो आई हैव टू विन, पर जीता नहीं जीता एक ही है, तो वो निष्काम हो जाता है। पर मुझे जीतना ही है और मेरा कनेक्शन है जीतने से, तो वो फिर सकाम हो जाता है। ये बात भगवत गीता में बताई है। तो मुझे लगता है वो पेमेंट वाली बात, पेमेंट मिले ना मिले, वो कोई जैसे लॉर्ड कृष्णा ने कहा कि यू आर क्षत्रिय, यू हैव टू फाइट, करेक्ट। ऑलवेज फाइट टू विन, बट उसके जब व्हेन यू फाइट, तब आप का मन में क्या विचार है, सकाम है कि निष्काम है। तो प्रोसेस जो आप करते हो तब अटैचमेंट है कि जो भी आउटकम है वो समझ गया ईश्वर आपकी बात, समर्पित करके। आपकी बात समझ गया बिल्कुल। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर ओपिनियन। लेट्स एक्नॉलेज जोशी जी। या अब इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेता हूं मैं। सबसे पहले तो जब आपकी एक डिजायर है कि मैं ये काम करूंगा और मेरे को रिटर्न में ये मिलेगा, राइट, विच इज एन एग्रीमेंट, जैसे सैलरी पे है। अब कोई लोग बोलते हैं जॉब में, जितने लोग जॉब में हैं, हाँ, उनकी दुनिया देखते हैं एक बार। जॉब में है, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट माई जॉब, आई वॉज इन द कॉर्पोरेट सेक्टर बाय द वे। हाँ, मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर चुका हूँ। 14 years आई वॉज इन द मार्केटिंग एंड सेल्स, अनदर 14 years आई वॉज इन द ट्रेनिंग इंडस्ट्री एज ए कॉर्पोरेट ट्रेनर, ऐसे ऐसे यू कैन से रीजनल हेड ट्रेनर। नाउ अंडरस्टैंडिंग क्या है? एट द एंड ऑफ द मंथ आई विल गेट ए सैलरी प्लस इंसेंटिव प्लस प्रमोशन। अगर मेरे को बोल दिया जाए कि आज के दिन से बाद आपको सैलरी नहीं मिलेगी क्योंकि आपका काम सिर्फ कर्म है, कर्मफल आपके हाथ में नहीं है, आपको कर्मफल के साथ अटैच नहीं होना है, तो आज के बाद आपको सैलरी नहीं मिलेगी, प्रमोशन नहीं मिलेगा, इंसेंटिव नहीं मिलेगा। कितने लोग काम करेंगे जॉब में? एक भी नहीं करेगा। कहते हैं पैशनेट हूँ बहुत जॉब के लिए, बिना पैसे के काम करोगे? कितने लोग हैं जॉब में जो काम करते हैं? कॉर्पोरेट वर्ल्ड हमको मालूम है आजकल पैकेजेस कैसे दे रहे हैं। 50 lakhs एनुअल पैकेज, 1 crore एनुअल पैकेज। उनको बोले कल से तुमको फ्री पेमेंट मैक्स गेन में कितनी भी करो। फ्री में सर काम करना है। करना भी, अगर अगर करना भी चाहे तो हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन हमें अलाउ नहीं करती है, करेक्ट। सरवाइव हाउ विल करने यू के लिए सर्वाइव? हमें लेने पड़ता है। आपने लोन ले रखा है, आपके एक लग्जरियस लाइफस्टाइल है, आपका एक लाइफस्टाइल है, उसको सस्टेन करने के लिए आपको चाहिए ही चाहिए, तो अटैचमेंट तो आ ही जाएगी ना, सैलरी के साथ भी आ जाएगी। प्रैक्टिकली सोचिए। करेक्ट। नाउ अब आपने बोला कि कोई क्रिकेट खेल रहा है, मैच में हार भी सकता है, जीत भी सकता है, ये उसके हाथ में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बट परफॉर्मेंस उसके हाथ में है। आजकल हमने देखा है क्या क्या हो रहा है। बॉलर्स आउट करने के बाद अगर आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है क्रिकेट में, तो आपने सुना होगा कितना बड़ा तहलका मचा, अभी पीछे हैंडशेक नहीं हुआ, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है,
गालियां दे रहे हैं एक दूसरे को, ये सब आपको लगता है कि हार जीत से अटैच नहीं है? हार जीत में इनकी जिंदगी टिकी पड़ी है। कैप्टन सैक हो जाएगा, प्लेयर फॉर्म बाहर निकाल दिए जाएंगे, उनकी इनकम खत्म हो जाएगी, आईपीएल नहीं खेल पाएंगे। बहुत कुछ है। क्रिकेट टीम में हो तो आईपीएल भी खेल पाओगे, पैसे कमाओगे। तो सेल्फिश डिजायर है, ये सकाम है। यस, बट व्हाट यू हैव सेड इज एब्सोल्युटली राइट। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने क्या कहा है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भु माते संगोस्तव कर्मणि। मतलब क्या है? आपका अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, कर्म फल में आपका अधिकार है ही नहीं। इसलिए उससे अटैचमेंट छोड़ दो और सिर्फ कर्म करो। फल देने का अधिकार मेरे को है, छोड़ दो भगवान पे। जो फल मिलेगा उसको भगवान का प्रसाद समझ के एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। यस, दैट इज व्हाट इज द राइट अंडरस्टैंडिंग, एब्सोल्युटली राइट। वो कहाँ होगा? बच्चा पढ़ाई कर रहा है, मन लगा के पढ़ाई कर रहा है, और उसके बाद एग्जाम देने गया। अब एग्जाम में 90% आएंगे या 60% आएंगे उसके हाथ में नहीं है। उसके हाथ में है पढ़ाई करना, एग्जाम देना। यहाँ पे आता है कर्म करना है। अब ये बोलते हैं 90% नहीं आया तो मैं सुसाइड कर लूंगा, ये अटैचमेंट है रिजल्ट के साथ। तो अटैचमेंट नहीं रखनी है। आप पढ़ो और एग्जाम दो, और अगर मेरिट लिस्ट आ गई, मजे आ गए, एंजॉय करो। और अगर रिजल्ट खराब आया, वापस जाओ, दोबारा पढ़ाई करो और फिर एग्जाम दो। परेशान नहीं होना, दुखी नहीं होना, सुसाइड नहीं करना। ये है इसका तात्पर्य। करेक्ट। और इसका एक और मतलब है, अगर कर्मफल मेरे हाथ में है ही नहीं तो मैं कर्म ही क्यों करूं? ये भी गलत है, क्योंकि कर्म ना करना भी कर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में यही बताया, कुछ ना करना भी कर्म है और उसका भी नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो कर्म तो करना ही है। तो मैं योगेश्वर हूँ, तीनों लोगों का स्वामी हूँ, फिर भी मैं कर्म कर रहा हूँ। दिन रात कर्म कर रहा हूँ, निरंतर कर्म कर रहा हूँ, और अभी भी तुम्हारा सारथी बना हुआ हूँ। राइट। So I am always in action. This is what I want to teach people. You should always be in action. Forget about the result. Get into the action mode. इस एग्जाम्पल को बेस्ट दर्शाते हैं जब कोई स्टूडेंट पढ़ाई में काम करे, या आपने ऐसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया, बहुत डट के काम किया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन प्रमोशन नहीं मिला, तो गाली गलौज नहीं करनी, दुखी नहीं होना, दोबारा काम करो, अगले साल मिलेगी। यस, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द श्लोकास इन द राइट पर्सपेक्टिव ऑफ अवर प्रैक्टिकल लाइफ। थ्योरेटिकली समझ के फायदा नहीं है, वो फिर कंफ्यूजन हो जाती है। तो सकाम कर्म, जब भी आपका कोई सेल्फिश डिजायर होगा, कुछ भी आपको रिटर्न में मिल रहा है और आप उससे अटैच हो रहे हो, तो वो सकाम कर्म है। सकाम कर्म हमेशा बॉन्डेज क्रिएट करेगा, अटैचमेंट क्रिएट करेगा, जबकि निष्काम कर्म आपको फ्री करेगा अटैचमेंट से। ये है डिफरेंशिएशन। और निषिद्ध कर्म जो है, निषिद्ध कर्म आपको स्पिरिचुअल जर्नी में गिरा देगा, यानी कि आपकी स्पिरिचुअल डिके हो जाएगा। आप चोरी कर रहे हैं, डाका डाल रहे हैं, किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी को ब्लेम कर रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब तामसिक एक्टिविटी हैं। ये सब निषिद्ध कर्म है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को रोक देगा, बल्कि गिरा देगा। तो निषिद्ध कर्म विल ऑलवेज डिस्ट्रॉय योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। सकाम कर्म विल क्रिएट बॉन्डेज फॉर यू। आप वहीं पे रहोगे लेकिन बॉन्डेज क्रिएट हो जाएगा, माया में फंसे हो, पैसे चाहिए। आप रिश्ते में हो, फैमिली में, एक रिलेशनशिप में हो, और ये मेरे को छोड़ के नहीं जानी चाहिए, अटैचमेंट। आप उनको फ्रीडम नहीं दे रहे हो, मिनट मिनट का हिसाब चाहिए। यस, तो यू हैव सीन पॉसेसिव हस्बैंड, पॉसेसिव वाइफ, हर 1 घंटे बाद फोन करके पूछे कहाँ हो, क्या कर रहे हो, फोन को नहीं किया, काइंड ऑफ थिंग। तो दूसरे को बिल्कुल फ्रीडम नहीं मिलती, दूसरे को बिल्कुल स्पेस नहीं मिलती। क्यों? अटैचमेंट। और जब अटैचमेंट बढ़ती है तो उसमें प्यार कम हो जाता है। How many of you have seen that? Attachment is not love. Attachment kills the love.
kills the freedom. Attachment is bondage. तो सकाम कर्म is always creating bondage. इसलिए हमको निषिद्ध कर्म से बचना है. सकाम कर्म को जितना कम कर सकते हैं उतना कम करेंगे और अपने सारे कर्म को निष्काम कर्म में लाएंगे, तो आप फ्री हो जाओगे, स्पिरिचुअल जर्नी आगे बढ़ेगी और आप सही माने में कर्मयोगी बनोगे. सही कर्म करने का मतलब क्या है? आप कर्मयोगी बन रहे हो. तो कर्म आप योग में कर्मयोग का मतलब क्या है? सबने किताबें पढ़ी हैं कर्मयोग की. कर्मयोग का मतलब क्या है? आप जो भी कर्म कर रहे हो योग में कर रहे हो. योग में किसके? उस परमात्मा के योग में कर रहे हो. पहला लेवल है आप कर्म कर रहे हो और फल भगवान पे छोड़ दे रहे हो. ये मेरा काम सिर्फ कर्म करना है, फल देना भगवान का काम. गुड. सो यू हैव गिवन अप योर अटैचमेंट टू द रिजल्ट. फर्स्ट लेवल ऑफ कर्मयोगी. सेकेंड लेवल ऑफ कर्मयोगी क्या है? आप सारे कर्म भगवान को अर्पित कर रहे हो, जैसे भगवान की पूजा कर रहे हो. तो आप ऑफिस में भी ऐसे काम कर रहे हो जैसे कि ये कर्म करना मैं भगवान को अर्पित कर रहा हूँ. इट इज अ वर्शिप ऑफ गॉड. So not only the results, you are dedicating all your karmas to God. You are seeing divine in everybody and you are worshipping the divine in the people. तो सबकी रेस्पेक्ट कर रहे हो, सबको प्यार से बात कर रहे हो, चाहे वो प्यून हो या बॉस हो, आप सबसे रेस्पेक्ट के साथ बात कर रहे हो. अपने कर्म सही कर रहे हो, अपने वैल्यूज के हिसाब से काम कर रहे हो. यस. तो दैट इज सेकेंड लेवल ऑफ कर्मयोग. फाइनल लेवल ऑफ कर्मयोग क्या है? यू सरेंडर एवरीथिंग टू द डिवाइन. यू सरेंडर योरसेल्फ टू द डिवाइन. तन मन धन से भगवान को अर्पित हो गए. अब डिवाइन विल के हिसाब से काम कर रहे हो. यू आर नॉट डूइंग माई विल. मेरा कोई विल नहीं है. आई विल ओनली फॉलो द डिवाइन विल. जो भगवान मुझे गाइड करेंगे वो मैं करूँ. मेरा सारा जीवन भगवान को अर्पित कर दिया. टोटल सरेंडर. एंड द डिवाइन गाइडेंस विल कम टू यू एंड यू विल live your life accordingly. This is the highest level of karma yoga. This is a Jivan Mukta. He is free from all karma. भगवद गीता में ही एक और श्लोक है जो कि ये जोशी जी इसका समर्थन करेंगे, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा. राइट. तो सब धर्मों को त्याग दो, सब मोह माया को त्याग दो, सब अटैचमेंट को त्याग दो, सब धर्मों को त्याग दो और मेरी शरण में आ जाओ. सरेंडर योरसेल्फ टू मी. अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि. मैं तुमको सब पापों से मुक्त कर दूंगा. डू नॉट ग्रीव. हाँ शुचा. डू नॉट ग्रीव. नाउ व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस, यू टू बी वेरी वेरी केयरफुल. उन्होंने क्या कहा है? मैं तुमको हर पापों से मुक्त कर दूंगा. उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें हर कर्मों से मुक्त कर दूंगा. कर्म का फल तो मिलेगा ही मिलेगा. आपको अपने कर्म किए हैं उसका कर्म आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मैं आपको पाप से मुक्त कर दूंगा. व्हाट डज दैट मीन? एनी आइडिया? व्हाट डज दैट मीन? मैं तुमको पाप से मुक्त कर Confusing. दूंगा और मैं तुमको कर्म से मुक्त कर दूंगा. क्या फर्क है क्या हो दोनों में? गया? महंगा क्यों हो गया? कंफ्यूजिंग लग रहा है. क्यों आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बताओ, कंफ्यूजन तो दूर हो जाएगी. क्या हो गया? कहाँ से डिस्टर्बेंस आ रही है? प्लीज गो ऑन म्यूट. या तो फर्स्ट शेयर योर अंडरस्टैंडिंग, देन आई विल टेल यू द डिफरेंस. एनीबॉडी? आई थिंक भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं तुम्हें पाप मुक्त कर दूंगा, मतलब जो भी हमारे संचित पाप है ना वो फिनिश हो जाएंगे. भगवान जी में इतनी पावर है कि हमने जो भी किया हुआ है और अगर हम टोटल सरेंडर करते हैं कि हाँ हाँ प्रभु हम आपकी शरण है, तो वो हमारे जो संचित पाप हमने जो कई जन्मों से करे हैं उसे क्षण में फिनिश कर सकते हैं. ओके. नए ना बनाए, नए ना बनाए. Very और good. जो हमने करा हुआ है वो तो करा ही हुआ है.
इस जन्म में, नहीं तो पता नहीं पिछले कितने जन्मों से चला आ रहा है जो करा है। तो आई थिंक पाप मुक्त वो हमें ऐसे ही कर सकते हैं कि वो हमारे पुराने सारे जितने भी हैं वो फिनिश कर दे, माफ Okay. कर दे हमें। Okay, very good. Good understanding. Let's acknowledge. आपका नाम क्या है मैम? भावना सिंह। भावना सिंह। आप भावना जी लिखिए ना वहाँ पे, वो वरना पता गलती नहीं से आज चलेगा। आ नहीं रहा, बाय द वे मैंने Okay, that's मेरी fine. मोबाइल का आ गया, सॉरी। मैं कल नेक्स्ट मीटिंग में ठीक कर दूंगी That's इसको। fine. That's fine. So we know you are हाँ, Bhavna. Okay. तो हाँ। भावना जी ने बहुत अच्छा शेयर किया है, वेरी क्लोज टू द रियल अंडरस्टैंडिंग। सो लेट्स एक्नॉलेज भावना जी, बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड एनीबॉडी एल्स हु हैज एनी डिफरेंट व्यू, हु हैज एनी डिफरेंट व्यू। ओके, सो लेट मी जस्ट बिल्ड ऑन दैट। हाँ, देखिए, जब आप कोई कर्म करते हो, कर्म कहाँ कर रहे हो आप? बाहर की दुनिया में। तो बाहर की दुनिया में एक चेन रिएक्शन शुरू हो गया है। ओके, मान लीजिए मैं किसी और का नाम नहीं ले सकता, इसलिए अमित जी का नाम ले लेता हूँ। मैंने अमित जी के साथ बहुत बुरा सलूक किया, राइट? जो भी आप सोच सकते हैं, बुरा सलूक किया, वर्ड से, थॉट से, एक्शन से, सब कुछ बुरा करके मैंने कट ऑफ विद, करेक्ट? पर मैंने एक चेंज शुरू कर दी, मेरे अंदर कुछ इम्प्रिंट्स बन गए। कौन से? गुस्सा, वायलेंस, एब्यूसिव लैंग्वेज, वट उन सब के इम्प्रिंट मेरे अंदर आ गए, क्योंकि ये मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ मेरे चित्त में आ जाएगा, उसी को संचित कर्म बोलते हैं। तो मेरे चित्त में बहुत सारे नेगेटिव इंप्रेशंस बन गए, ठीक है? बाहर की दुनिया में मैंने कुछ ट्रिगर कर दिया। अब अमित जी वो गुस्सा किसी और पे निकालेंगे, वो किसी और पे निकलेगा, चेन बनती जाएगी बनती जाएगी। उन सब का रिस्पॉन्सिबल कौन है? मैं हूँ। वो सब वापस आएगा मेरे पास। इसीलिए बोलते हैं, जो आप दे रहे हो 10 गुना ज़्यादा वापस आता है। अब 10 गुना ज़्यादा वापस आ रहे हैं, यानी कि अब 10 लोग खड़े हो गए हैं मेरे को गुस्सा दिखाने के लिए। सेम काइंड ऑफ रूड बिहेवियर दे आर शोइंग टू मी। क्यों? क्योंकि मैंने वो ट्रिगर कर दिया शुरू। ये कर्म है, तो वो कर्मों से मुक्त नहीं करेंगे मेरे को। बाहर के 10 लोगों को मेरे को डील करना ही होगा। दे विल कम एंड बी रूड टू मी, दे विल मे बी फाइट विथ मी, दे विल मे बी बैश मी अप। जो कुछ मैंने किया वो मेरे को वापस आएगा, और एक जने से नहीं 10 जनों से आएगा। ये कार्मिक अकाउंट है। तो कार्मिक अकाउंट बाहर की दुनिया में हो रहा है, कार्मिक इम्प्रिंट अंदर की दुनिया में हो रहा है। बात समझ में आ गई? तो जब मैं सरेंडर करता हूँ तो भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं? मैं तुमको सब पापों से मुक्त कर दूंगा। पाप कहाँ है? मेरे चित्त में है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब है पाप। ये पॉइजन है जो मेरे चित्त में है, वो मुझे इससे मुक्त कर देंगे। बाहर का अकाउंट मेरे कर्मा है, तो कर्मों से मुक्त नहीं करेंगे। उन 10 लोगों का हिसाब किताब मेरे को खुद देना ही है, पर मेरे अंदर के पाप को वो मुक्त कर देंगे, मुझे मुक्त कर देंगे उससे। तो जब वो मारने आएंगे तो मैं उनको प्यार से बात करूंगा। शायद मैं 10 माला लेके उनको शांत करूं, जो भी करूं, क्योंकि मेरे अंदर गुस्सा खत्म हो गया। यस, तो मैं उनसे माफी मांग सकता हूँ, उनको बिठा के चाय पानी पिला सकता हूँ। तो जो भी है सिचुएशन न्यूट्रलाइज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरे प्रेजेंट कर्म बहुत स्ट्रांग हैं, वो पूरे डिवाइन विल से आ रहे हैं, फुल ऑफ लव, पीस एंड जॉय। तो मैं अपने कार्मिक अकाउंट खत्म कर लूंगा, और अमित जी से माफी भी मांग लूंगा, उनके साथ चाय भी पी लूंगा, वो सब हो जाएगा। तो रिलेशनशिप रिस्टोर हो गई, बिल्कुल हो गई। तो बाहर की दुनिया में कार्मिक अकाउंट है, अंदर की दुनिया में कार्मिक इम्प्रिंट है, ये ध्यान रखना। तो व्हेन वी सरेंडर टू द डिवाइन, the divine in me will get invoked and it will remove all the poisons in my chit. That is the meaning of this shloka. Making sense? Everybody okay? Shalu ji? Hello? Hello, am I okay? Am I audible? Hello, hello, hello. Hello?
Are we connected? Hello, am I audible? Am I back? Yes, sir. अब आपकी आवाज आ रही है Yes, sir. Okay, आ रही good. है आवाज। Good. So the network was really bad and I got disconnected. तो आ रही है, जा रही है वापस दोनों। हाँ, कोई बात नहीं, थोड़ा सा अनस्टेबल दिखा रहा है, कोई बात नहीं. As long as you can hear me, that is fine. Yes. All right, good. So where were we when we were discussing it? हम बात कर रहे थे कार्मिक Imprints. मेरे पास आएगा तो कार्मिक imprint और कार्मिक Imprints. account. So is that clear to everybody? Is that clear to everybody? Okay, so let's have some more discussions. What is your understanding? जो कुछ मैंने अभी बोला उससे क्या समझ में आया? तो शालू जी, आपको क्लियर हो गया? कंफ्यूजन तो नहीं है अब? अगर कोई है तो डिस्कस करते हैं. क्लियर है सर? ओके, गुड, वेरी गुड. नहीं नहीं, इट्स क्लियर। इसको क्योंकि पहले हम सोचते थे पाप नीशु मतलब जो TI एक्सटर्नल चीजें हैं बेटा है मैं हम्म। उनको रेफर कर रही थी, अरे बट भैया, नाउ आई अंडरस्टूड व्हाट यू छोड़ सेड दो। एग्जैक्टली। निकल लो Yes. बाद भी तो अंदर की दुनिया में जो पाप है वो साफ हो जाएंगे क्योंकि भगवान अंदर हैं, भगवान बाहर है ही नहीं. गॉड इज dwelling in the heart of all the human beings, right? So when we surrender to the divine in our heart will get invoked, and with that divine love, divine wisdom, we will be able to clear our chit. Then we have to settle the accounts in the outside world. That is how we are going to live our life. Yes. Yes, Apurva ji, you want to share something? Go ahead. Yes, sir. हाँ जी. जैसे गीता का दूसरा श्लोक, कैन यू हियर मी सर? Yes, yes, yes. Go ahead. कैन यू हियर सर? हाँ हाँ, बताइए. हाँ, गीता में श्री कृष्ण भगवान ये भी कहते हैं ना सर के अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। Yes. तो ये जैसे उन्होंने वो आपने बताया ना कि वो सर्व पापों से भी वो मुक्ति दे देंगे और तेरी सारी जिम्मेदारियां जो है वो मैं ले लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल. That is what I Yogatshema understand. Vahamyam. Yogatshema Vahamyam means God will personally take care of your needs. But again, we have to understand there is a fine print here. Yes, sir. Hello. Condition applies. हाँ, छोटा सा एक स्टार है वहां पे. कंडीशन क्या है? He will take care of the needs, not the greed. वो आपको अंबानी जैसे Right, sir. अमीर नहीं Of course, बनाएंगे. of course, yes, sir. Correct. वो आपके सर्वाइवल के लिए इशू नहीं आएगा. He will take care of your needs. तो आपको कभी खाने पीने की, जिंदा रहने की वो कमी नहीं आएगी. He will take care of your needs depending on your karma. Correct? तो अगर आप निष्काम कर्म कर रहे हैं, he will take care that you will get the necessary returns for your survival. He will take care of that. He That will is what it protect. means. Great, sir. Yes, he will protect you. He will give you the survival needs. आपकी needs कभी भी उसके लिए आपको दिक्कत नहीं होगी. But definitely not your greed and definitely not your want. हाँ, तो सिर्फ needs. तो needs को समझना है. Needs क्या है हमारे? Food, clothing, shelter and Yes, sir. Yes, love, sir. peace and joy. वो सब आपको मिलेगा. Yes, very good, very good. निवेदिता जी. आप अगर वीडियो आपका बंद कर दोगे तो शायद आपकी वॉइस ज्यादा स्टेबल हो वो जाएगी. थोड़ा थोड़ा अनस्टेबल रहता है. That's fine. No problem. You will all get the recording so you can catch up. If something is not clear, I will repeat. Yes. Yes. Anybody else who wants to share anything? So we're reaching the scheduled time, closing time. But before that, anybody who wants to share? Okay, let me see if I can stop the video. Hello, am I audible?
Hello, am I audible? भावना जी, शालू जी, am I audible? अमित जी? No. Hello. Are we connected? Can you hear me? Yes. Okay. So there are many people who have dropped out. Yes. Okay, so we are reaching the schedule close. So it's fine. If anybody has any question, I will take that. And रुपया जोशी जी, आप ही दिख रहे हैं मेरे को, तो अगर कुछ आप बोलना चाहें, if you want to share something, तो क्या आप इस सेशन से लेके जा रहे हैं? Anything you want to share? Please go ahead. भावना जी, शालू जी, if you are there, you should connect. जी सर, यहीं पे है सर। पापा के साथ हाँ, good. So anything you want to share? Anything you want to एक बात connect? रही। What are you taking away from the session? So I will close the session now. We've already discussed the main topics. Yes. तो अगर कोई सवाल हो आप क्या पूछ सकते हैं, या आपकी क्या लर्निंग है, क्या सीखा आपने इस सेशन में, अगर वो बताना चाहें तो बता सकते हैं. Then we will close the session today. Yes. आज काफ़ी ज़्यादा नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है. नॉर्मली इतनी प्रॉब्लम आती नहीं है. Anyway. Yes. So anybody who wants to share? सर, आई वांट टू शेयर वन थिंग, लाइक जैसे मेरा भी, आई एम इनटू बिजनेस डेवलपमेंट, Yeah. तो हमारे पास भी काफी काम आता है, मतलब बहुत काम मेहनत करनी पड़ती है, बट मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि काम पूरा हो जाए, उसके बाद देन आई लीव एवरीथिंग, कि मिलेगा नहीं मिलेगा दैट इज नॉट माई हैंड। Yes. पक्का है ना बिल्कुल? हार्ड वर्क जितना कर सकते शालू हैं जी, उतना आपके करते हैं, पीछे से उसके बाद आवाज़ आ रही है जाके क्या होता है। कुछ? पक्का है ना? हाँ जी। हाँ, तो हाँ, आप उनको अब जरा, नहीं। हाँ, हाँ अरे हर महीने आएगी, हर दिन आएगी। हाँ जी। 2 मिनट के लिए अगर वो बोल शांत हो रही है। जाते हैं तब आप शेयर करिए, हाँ, वरना वो फिर. जा रहे हैं, हाँ, बाहर जा रहे हैं। हाँ जी, बोलिए. तो या आई हैव दैट रियलाइजेशन कि अपना जितना कर सकते हैं, जितना हार्ड वर्क 100% दे सकते हैं, देने के बाद देन आई गेट डिटैच टू दैट थिंग, ओके. क्योंकि फिर उसको लेके बैठे रहे तो कोई फायदा नहीं है। जितना हम कर सकते हैं उतना कर देते हैं, उसके Yes. बाद वो इट कम्स और नॉट, आई थिंक दैट इज डिपेंड ऑन भगवान के ऊपर छोड़ देते Yes. हैं। See, in career, in job, in profession, in business, in dealing with other people outside your life, that means outside your home, that can be done with a little bit of, you can say, insight and observation and understanding. But the people who are with us throughout, that means our immediate family members, यहाँ पे हमारे कर्म कैसे हैं वो ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है. करेक्ट? क्योंकि our quality of life is more dependent on the close family relatives or relations that we are living. पेरेंट्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ, बच्चों के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, who are karmically associated with us. जॉब ठीक है, बॉस जो भी है, अगर आपने जॉब छोड़ दिया और नौकरी छोड़ दी तो बॉस चेंज हो जाएगा, तो वो आते जाते रह सकते हैं. बट योर पेरेंट्स, आप कहीं भी जाओगे, पेरेंट्स तो पेरेंट्स ही रहेंगे इस लाइफ टाइम में. योर सिबलिंग्स, योर पार्टनर, योर चिल्ड्रन, इनके कार्मिक अकाउंट्स आपके साथ बहुत स्ट्रांग है. तो इनके साथ आपके कर्म कैसे हैं उसको पहले मॉनिटर करिए. राइट? क्योंकि जॉब आप 5 साल रहेंगे, 10 साल रहेंगे, उसके बाद चेंज कर, आजकल तो इतना भी नहीं जाते. तो आई वॉज in the organization for 14 years, but most of my people later on they were switching after 2 years. And then I decided कि मेरे को अब जॉब करना ही नहीं है, अब मैं अपने लिए काम करूँगा. So then I started into the training industry, set up an organization and had my team of trainers and all that. But the idea is that कि बाहर की दुनिया को तो हम छोड़ सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता है. If I have an argument with a auto driver or a रिक्शा वाला, it doesn't matter much to me. वो 1 घंटे की बात है, उसके बाद वो खत्म, वो मेरी ज़िंदगी से बाहर है. But your neighbors, your relatives, your close family members, इनके साथ हमको ज़िंदगी बितानी है. इनके साथ कर्म कैसे हैं उस क्वालिटी को आप देखिए पहले, and then you move on. That will be the right approach. Yes? क्योंकि हमारे सबसे ज़्यादा कर्म वहीं पे दिखेंगे. सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्मिक इम्प्रिंट कौन से हैं? सी, when as a soul you are born in a family, आप उसी फैमिली में क्यों पैदा हुए? 800 करोड़ लोगों में
आपने वही फैमिली चुनी, वही पेरेंट्स चुने, वही घर चुना, वही सिटी चुनी, तो ऑब्वियसली देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कर्मा देयर, राइट? Yeah. तो आप कहाँ बर्थ ले रहे हैं, दैट इज प्रारब्ध कर्म। आपके सिबलिंग्स कैसे होंगे, आपके पेरेंट्स कैसे होंगे, आपकी इनिशियल अपब्रिंगिंग कैसी होगी, ये सब प्रारब्ध है। यस। देन योर पार्टनर कैसे होंगे, आपके बच्चे कैसे होंगे, ये भी प्रारब्ध है। ये तो बच्चों का भी प्रारब्ध है, क्योंकि उन्होंने जन्म लिया आपके यहाँ। यू वुडंट have called them, they called you. As a child, they are born because they chose the parents. You chose your parents because of your karmic account. ये वैसे ही है कि अगर मेरे 60% मार्क्स आएंगे तो मैं इस यूनिवर्सिटी में दाखिला लूंगा, 90% आए तो फिर मैं किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लूंगा। अब मैं उसी कॉलेज में क्यों गया, क्योंकि मेरे मार्क्स उतने हैं। नाउ योर मार्क्स आर इक्वलेंट टू योर कर्मा। जैसे आपके कर्म होंगे उसी यूनिवर्सिटी में जाओगे ना आप। यस, तो दैट इज हाउ यू नीड टू नो। आपके कैसे संचित कर्म हैं, कैसे आपके प्रारब्ध कर्म है, वैसे ही आपको लाइफ की सिचुएशन मिलेगी। उसके बाद जैसे जैसे आप कर्म करते जाएंगे वैसे वैसे इंप्रूव होते जाएगा। तो ये डेस्टिनी इज ऑलवेज पास्ट कर्मा प्लस प्रेजेंट कर्मा। इट इज नेवर आइदर पास्ट कर्मा और प्रेजेंट कर्मा, दोनों को मिला के आपकी डेस्टिनी बनती है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। यस, तो फॉर्मूला क्या है, पास्ट कर्मा प्लस प्रेजेंट कर्मा इज इक्वल टू डेस्टिनी। देन यू विल लिव ए हैप्पी लाइफ, क्योंकि प्रेजेंट कर्मा आपके हाथ में, पास्ट कर्मा तो आपको पता ही नहीं है। इस जन्म के फिर भी याद होंगे, पिछले जन्मों के तो याद ही नहीं है आपको। तो प्रेजेंट कर्मा से डेस्टिनी बना रहे हो, यस, बट द लिमिटेशन विल बी फ्रॉम द पास्ट कर्मा, क्योंकि आपकी सिचुएशंस जो लाइफ में है वो सब प्रारब्ध कर्म है, वो सब पास्ट कर्मा से आ रहे हैं। आपके हाथ में सिर्फ पुरुषार्थ है, क्रियामान कर्म। यस, right, so that is enough gyan for today. We will close the session now, and we will meet again next session with the fourth spiritual law. That will be the law of least effort. वो हम अगले बार करेंगे। So keep joining and invite people from your life so that they can all come here and get some wisdom bites. And till we meet next week, Aham Brahmasmi. Enjoy, take care, all the best. Bye-bye. Bye, everybody.